Hello everyone, welcome to Physics by Aryan. So we are doing CSIR Net 2023 June attempt pre-lecture series. Okay, so I am conducting one free lecture series for almost 1 month in which I am focusing on covering part C of the syllabus. If you are watching this lecture anytime else on YouTube, the you will find a detailed test lecture series on our YouTube channel in which we will be covering the entire part C syllabus into a very simple method. In a simple lectures, we are covering that. Along with this lecture series, I am also giving one course in which we are extensively revising part B and covering part C. How we are revising part B? Using the notes for each topic, using the exact book reading, which book you should read for each topic, okay, and which chapter of the book. So you should read only one chapter of a specific book for each and every topic. Then for that, you are also getting the notes. Then we are giving assignments for that topic. Other than assignments, we are also doing previous year questions topic wise, right? And then there comes a test series. And this test series is for CSR net. Okay. And for part C, I'm giving again my notes and all these things again. So for part C, I'm making a new kind of notes which are not available, so that these are very simple notes, easy to read and can cover the part C syllabus very quickly. Okay, based on the analysis of the part C. So you can also join the course as well, so that it will help you in the preparation. Both the lectures as well as course will complement each other, and it will be beneficial for you to qualify the exam in a quick time, in less amount of time. Okay, if you want to join the course, you can see the Telegram channel. Okay, all the details are there. Fine. Now, yesterday what we covered in the class is nuclear forces. So what we try to cover is what are the nuclear forces, and one system. Oh, we studied all the properties of nuclear forces, A to Z, all the properties. And then we studied one system called deuteron. Deuteron is a two hydrogen nucleus. This is a hydrogen atom. This is an isotope of hydrogen atom in which there is one neutron as well and one proton. So inside the nucleus, there is one neutron and there is one proton. So this is a two body problem. So in physics, we like to solve the two body problems. Okay, we like to solve the two body problems because those are easy to handle. We can predict so many things in there. For example, in hydrogen atom, we solve hydrogen atom problem in which there is one proton and one electron. Similarly, here we are solving one proton and one neutron problem. In hydrogen atom problem, we found that there are many energy levels. We studied Bohr energy levels, right? We studied Lyman series, Paschen series, bracket series, and why and many series comes because there are many energy levels and transition is happening between many energy levels. As a result, there are many lines, many atomic lines or many spectral lines in an hydrogen atom spectra. Fine. But in nuclear physics, in a case of proton neutron system, there is only one excited state, just one excited state. That's it. Only one excited state. Energy of this state is minus 2.224 electron mega electron volt. Okay, mega electron volt. So what we studied there was how we calculated, and what we studied there was ki there is one neutron which is exerting the force on proton. So there is one neutron जो कि प्रोटॉन के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है. Because of that force, proton is experiencing some sort of potential. So there is a potential well that has been associated, and inside this finite potential well, proton is there. So proton is there.
So why this potential well is coming? Because neutron is exerting force on proton. And proton is inside a potential well. To understand the force between neutron proton, we can study this kind of potential well system. After the calculations, we found that the height of this well is 35 mega electron volts. The total height of this well is 35 mega electron volts. This number tells us about the forces between the proton and neutron. Second thing which we found was the only energy level which is possible inside this well is at 2.224 mega electron volt. All these numbers are negative. Okay, minus 35, minus 2.4 mega electron volt. So in this entire well, there is only one state which is possible for proton. Or for example, in simple words, if the proton is inside this well, then the only energy that proton can have is 2.224 mega electron volt. Fine. Second thing which we learned was that the separation between neutron and proton, the separation between neutron and proton inside deuteron is 2.1 Fermi meter, is 2.1 Fermi meter. This is also the width of the well. In this well, the width of the well is also called the distance between the neutron and the proton inside the nucleus. Fine. So these were the three things which we studied yesterday about the deuteron problem. One very good conclusion which we found was you can see there is a huge potential well. It is almost 35 mega electron volt. But the energy level is very close to the top. It's very close. The total height depth is 35 and you are just at 2.224. So if the forces were little weak, if the force between neutron and proton was just little weak, then this energy level was not possible. Then even the one energy level which is there, that would also have not been existed. तो एक ही एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है. अगर न्यूक्लियर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स थोड़ी सी भी और कम होती तो वो एनर्जी लेवल भी एग्जिस्ट नहीं करता. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ड्यूट्रॉन टू एग्जिस्ट. 2H का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है फॉर आवर एग्जिस्टेंस, बिकॉज फ्यूजन के लिए 2H का होना बहुत जरूरी है. और फ्यूजन के बिना हम जहां पर आज यूनिवर्स है वहां पर बन ही नहीं पाता. फाइन. So this is very important. This one energy level, the existence of just one energy level is extremely important. Okay. Now, today we will try to see that what is the spin and the parity of 2H atom, 2H nucleus. Okay. So deuteron, what is the spin of the deuteron and what is the parity of the deuteron? This is what we will try to cover today. Okay. Any doubts till here? Okay. If not, yeah, anyone has any doubts? Okay, so let's begin then. So what is a spin and the parity? First of all, in spin and parity are associated with the angular momentums. So if you want to know the spin and parity, you should know the angular momentums of the system. Okay. Now, all the fundamental particles have intrinsic angular momentum. All the fundamental particles have intrinsic angular momentum. What does this term means? This term means that these particles are not spinning or revolving. Okay, they are not spinning, they are not revolving, they are not rotating, they are not doing any sort of things. Still, they behave like they have some sort of angular momentum. Okay, for example, like mass. For us to have some mass, we don't have to do anything. We have mass. For example, charge. For electron to have charge, it do not have to do anything. It has charge. Okay. Similarly, there is an intrinsic angular momentum. Electron, neutron, proton, these things do not have to do anything to have angular momentum. They are just sitting there and they are behaving like as they have some sort of angular momentum built in them.
Okay, they are behaving like that. They are not rotating or revolving. The picture, there is one picture in which electron is revolving around its own axis. This kind of picture is wrong. Electron is not spinning around its own axis. Okay, electron has no axis. Electron is a point particle. It cannot rotate about itself. Okay, so electron has an intrinsic angular momentum, neutron has an intrinsic angular momentum. They are born with this angular momentum. Okay, and this angular momentum is associated with some sort of quantum number. Okay, this angular momentum is associated with some sort of quantum number. So whenever we have to define an angular momentum, we define one angular we define one quantum number known as spin. Angular momentum known as spin. Okay, so if we have a spin angular momentum ls, which is given by s plus 1 under root h cut. So this is an angular momentum with which all the fundamental particles are born with. सब fundamental particles इतने angular momentum के साथ पैदा हुए हैं. अब s is a spin quantum number. अब इस spin quantum number का जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ls की वैल्यू होगी. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? हाफ. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसकी वैल्यू क्या होती है? हाफ. फाइन. तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या स्पिन की वैल्यू है हाफ. ओके, अब उसकी वजह से कुछ एंगुलर मोमेंटम आता है. वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अंडर रूट एस प्लस 1 इंटू एच कट करके. ठीक है, ये फॉर्मूला से बेसिकली हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं. अब न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, एक तो न्यूट्रॉन की वजह से एंगुलर मोमेंटम है और एक प्रोटॉन की वजह से एंगुलर. तो इन दोनों का सम जो होगा वो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस. टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, तो अब एक रूल समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है. क्योंकि अभी हमें एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करना है, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स की वजह से अपना अपना कुछ एंगुलर मोमेंटम है और हमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है ऐड करके निकालना है. अगर एक का क्वांटम नंबर हो हाफ, अगर एक पार्टिकल का क्वांटम नंबर है हाफ और दूसरे पार्टिकल का भी क्वांटम नंबर है हाफ, तो जो इन दोनों का कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम होगा उसका जो क्वांटम नंबर होगा वो s1 माइनस s2 से लेकर s1 प्लस s2 तक जाएगा. तो s1 माइनस s2 कितना होता है? 0. और s1 प्लस s2 कितना होता है? 1. तो जो फाइनल क्वांटम नंबर है वो या तो 0 होगा या फिर 1 होगा. या तो 0 होगा या फिर 1 होगा. तो हमने क्या मेजर किया? जो मेजर्ड है, जो हमने मेजर किया है, ड्यूट्रॉन का जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है 1. अब मैंने यहां पर क्वांटम नंबर को आई से डिनोट किया है. तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो, एस ले सकते हो, एल ले सकते हो. यूजुअली न्यूक्लियस के केसेस में आई लिया जाता है. ठीक है, पर बात वही है, स्पिन ही है ये, बस क्वांटम नंबर का सिंबल बदल दिया. तो दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो 0 होता या 1 होता. 0 का क्या मतलब है? कि न्यूक्लियस का कोई एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं. तो ये कैसे हो सकता था? इस न्यूट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अप साइड में होता और न्यूट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम डाउन साइड में होता. तो इस केस में फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता? 0. ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन का भी अप और प्रोटॉन का भी अप, तो इस केस में दोनों का क्या हो जाता? 1. तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो बताती है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा. तो एक और फैक्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ड्यूट्रॉन हैज द क्वांटम नंबर I इक्वल्स टू 1. सबको पता चला यहां तक? क्लियर है भाई? हाँ ना बोलो, बताओ जल्दी. क्लियर है? हेलो? Clear. Yes, okay. ओके. Yes, sir. ओके, तो स्पिन अगर क्लियर है तो एक और चीज क्लियर करते हैं, वो है पैरिटी. जब भी तुम्हें पैरिटी दी हो, पैरिटी का एक तो मतलब पहले पहले फॉर्मूला बताता हूं, फिर मतलब बताता हूं. पैरिटी का फॉर्मूला होता है -1 रेज टू पावर क्वांटम नंबर. ठीक है, कौन सा? जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसका क्वांटम नंबर. तो कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं पहले तो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे. देखो, अगर तुम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो तो हम जो क्वांटम नंबर यूज करते हैं वो है s.
अगर तुम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो तो यूज होता है एल, और न्यूक्लियस के अंदर जो जो भी एंगुलर मोमेंटम की तुम बात करते हो उसके लिए सिंबल होता है आई। तो हमारे लिए जो भी सिंबल यूज होगा वो होगा आई, ठीक है। और अगर तुम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो तो फिर सिंबल यूज हो जाता है जे, लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे, आई, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी है एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा आई जो है वो है 1, तो हमारी पैरिटी क्या होगी, वो होगी -1। अब ये पैरिटी चीज क्या है, हमारी नेगेटिव पैरिटी आ गई। पैरिटी की दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो -1 या फिर +1। अब ये पैरिटी चीज क्या है, पैरिटी ये चीज है कि मान लो कि मैं न्यूक्लियस के अंदर, अपने न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक और चीज डिफाइन करती है, वो मतलब देख, फॉर एग्जांपल लेट्स से चार्ज इज अ इंट्रिंसिक क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली द what do you say, angular momentum is an intrinsic quantity. Similarly parity is also one of the intrinsic quantity. ये आपको बताती है कि अगर आप सब चीजों का मिरर कर दो, सब चीजों का मिरर कर दो, फॉर एग्जांपल आप x को -x कर दो, y को -y कर दो, ठीक है, आप मिरर में देखने लग जाओ, तो आपके सिस्टम क्या वो वैसा का वैसा रहेगा या चेंज हो जाएगा, क्या आपका सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा या चेंज हो जाएगा। अब अगर तुम फॉर्मूला में देखो, अगर तुम ध्यान से फॉर्मूला में देखो, अगर तुम L को 1 डालो तो तुम्हारी वैल्यू आती है -1, तो पैरिटी तो होनी चाहिए थी ऑड, यानी कि सब चीजें बदल जानी चाहिए थी। पैरिटी मस्ट हैव बीन ऑड, -1 इज -1, तो नेगेटिव पैरिटी होनी चाहिए थी, यानी कि ऑड पैरिटी होनी चाहिए थी। अगर तुम मिरर इमेज देख रहे हो न्यूक्लियस की, तो सब कुछ बदल जाना चाहिए था, उल्टा हो जाना चाहिए था, ठीक है। मान लो कि अगर एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन की तरफ था पहले, तो अब -k में हो जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मेजर्ड क्या है, मेजर्ड चीज क्या है, मेजर्ड ये है कि पैरिटी ऑफ अ ड्यूट्रॉन इज इवन। ड्यूट्रॉन की जो पैरिटी है वो इवन आती है, ठीक है, ड्यूट्रॉन की जो पैरिटी है वो इवन आती है, वो ऑड नहीं है। तो ऐसे कैसे हो रहा है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला है, दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि ये कैसे हो रहा है। तो यहां से एक अलग क्वेश्चन आया कि देखो भाई L=1 तो पॉसिबल नहीं है, या तो पॉसिबल है L=0 या 2, देखो क्योंकि -1 करोगे तभी तो +1 आएगा, यानी कि इवन पैरिटी होगी। अगर -1 करोगे तभी तो 1 आएगा, इवन पैरिटी होगी, ठीक है जी। लेकिन इसमें कैसे आ रहा है इवन, अगर L तुम्हारा 1 है तो कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, यहां पर मैंने तुम्हारे मन में एक डाउट डाला ताकि तुम एक पूरा कंसेप्ट की क्लैरिटी पकड़ सको, ठीक है। पैरिटी कभी भी पैरिटी कभी भी फाइनल से नहीं निकाली जाती, कि जो भी तुमने फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया उसको बस तुम आई ऊपर लगाओ और तुमने सीधा यहां से 1 निकाल के -1 कर दिया, ये गलत तरीका होता है पैरिटी निकालने का। पैरिटी निकालने का सही तरीका क्या है कि तुम उसके इंडिविजुअल्स को देखो, उसके इंडिविजुअल्स को देखो, तो उन दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इंडिविजुअली क्या है, दोनों की इवन इवन पैरिटी है, ठीक है। इस वजह से जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है और ड्यूट्रॉन का सिस्टम है, उसकी भी इवन पैरिटी आ रही है। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला -1 वैलिड रहे ही रहे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात को याद रखना, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि क्यों एग्जैक्टली इतना भी डीप नहीं जरूरी कि क्यों एग्जैक्टली आपको चाहिए ही चाहिए कि क्यों पैरिटी ऑफ ड्यूट्रॉन इज इवन, ठीक है, आप रीड कर सकते हो वैसे, बट यू शुड रिमेंबर दैट इट इज इवन, इट इज इवन, और इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो है 1। ये दो बातों को बहुत अच्छे से याद रखना, यही तुम्हें स्पिन और पैरिटी से मैसेज लेकर जाना है, ठीक है।
अब अगर हमने स्पिन और पैरिटी पढ़ ली तो एक और फिजिकल क्वांटिटी जो हमें पढ़नी है न्यूट्रॉन के लिए वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है। अभी तुम्हें कुछ टेंशन नहीं लेनी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन समझनी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, देखो, कोई फॉर्मूला बताएगा? इट इज करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो रोटेट कर रहा है एक सर्कुलर लूप में, तो वो कुछ करंट एसोसिएट कर रहा है जो है आई, और अगर मैं इस लूप का एरिया ले लूं ए, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल्स बनाते हैं। तो उस डाइपोल की जो डाइपोल मूवमेंट होगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सिंपल एज दैट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। ये होता है क्लासिकल फिजिक्स में। एटम्स, न्यूक्लियस के केस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला कैसे डिफाइन किया जाता है? हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द स्पिन। जितना तेज स्पिन होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा और उतना ही ज्यादा एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पिन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर हम देखें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पिन, और अगर इसको अगर तुम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो जो नंबर आता है, या तुम ऐसा भी बोल सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और अगर तुम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं जी फैक्टर। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टर्म्स में। एटॉमिक फिजिक्स में मैं जब क्लास लूंगा उसके अंदर हम बहुत डिटेल में करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यूट्रॉन के केस में आता क्या है। तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की बात नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे निकलेगा, लेकिन जो आता है, नंबर्स आते हैं, तुम्हें वो पता होना चाहिए। तो जो फ्री न्यूट्रॉन का डाइपोल मूवमेंट है, फ्री न्यूट्रॉन, मान लो न्यूट्रॉन जो है हवा में है, तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो होगा न्यू एन। और जो तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ रहा है वो आ रहा है 0.879 इंटू न्यू एन। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 0.857 इंटू न्यू एन। ठीक है, दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन स्टिल इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पहली बात तो यहाँ पे क्या याद रखने वाली बात है कि ये बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, जो फाइनल मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है वो बहुत ही छोटा नंबर है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और दूसरा, ये न्यू एन से छोटा है, दिस इज स्मॉलर देन न्यू एन। एक न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट से भी छोटा है ये। ओके, और तीसरी बात आ रही है कि जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो और जो एक्सपेरिमेंटली मेजर है वो ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो थोड़ा सा डिफरेंस कैसे आ रहा है? वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हम अब थोड़ा सा डिफरेंस वो इसलिए आ रहा है कि जो बात हमने अब तक पढ़ी ना कि सिर्फ एक ही एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट करती है न्यूट्रॉन में, वो पूरी तरह से राइट नहीं है। दैट इज नॉट टोटली राइट, दैट इज नॉट टोटली राइट। ये पता चला बाद में कि थोड़ा सा दूसरी स्टेट का भी पार्टिसिपेशन है। पहले स्टेट कौन सी थी? एल इक्वल टू जीरो, तो दूसरी स्टेट कौन सी आ जाएगी? एल इक्वल टू टू। ठीक है, तो एल इक्वल टू जीरो स्टेट हम बोल रहे थे अब तक कि हाँ ये पूरी अच्छे से पूरी की पूरी तरह से यही स्टेट है, एक ही स्टेट पॉसिबल है जिसकी एनर्जी है 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आफ्टरवर्ड्स ये पता चला एक्सपेरिमेंटली मेजर करके कि 100% ये नहीं है, 90% 96% तो यही स्टेट है, लेकिन 4% एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है जो कि एल इक्वल टू टू स्टेट है। जो कि एल, अब बात ये याद रखना, आई इक्वल टू वन और एल इक्वल टू जीरो इज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो दो अलग बातें हैं, ये सेम चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर वो बोल रहा है कि एक एल इक्वल टू टू स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक,
तो यहां से हमें पता चला था कि एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो अगर तुम्हें कोई बोले कि ड्यूट्रॉन की कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करती है, ड्यूट्रॉन की कौन सी स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में क्या बोला जाएगा कि 96% एस स्टेट एग्जिस्ट करती है। एस स्टेट कौन सी होती है? एल इक्वल्स टू 0। 4% डी स्टेट एग्जिस्ट करती है। डी स्टेट कौन सी होती है? एल इक्वल्स टू 2। ठीक है। न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर क्या है ड्यूट्रॉन का? वो है 1। ड्यूट्रॉन की पैरिटी क्या है? इवन। ठीक है। न्यूक्लियर ड्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है? अराउंड 0.85 न्यू एन। ठीक है। ये थोड़ा सा मिसमैच था इसके अंदर, यहां पे थोड़ा सा मिसमैच था, इसलिए हमें L इक्वल्स टू 2 स्टेट के बारे में पता चला। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता अगर मिसमैच नहीं होता तो हमें L इक्वल्स टू 2 स्टेट के बारे में पता चला। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ L इक्वल्स टू 0 स्टेट के हिसाब से कैलकुलेट करते तो वैल्यू जो आती वो एकदम एग्जैक्ट आनी चाहिए थी, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं आई, इसलिए हमें L इक्वल्स टू 2 स्टेट के बारे में पता चला। तो ये फैक्ट्स हैं सारे के सारे। ठीक है। अब ये L इक्वल्स टू 0 स्टेट की एनर्जी क्या है? -2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है? 35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। उसके बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2.1 फर्मी मीटर। तो दिस इज द समरी ऑफ ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम विच यू शुड नो विदाउट एनी डेरिवेशंस। दीज आर द फैक्ट्स दैट यू शुड नो। अब सिर्फ एक बात रह गई, जो ड्यूट्रॉन के अंदर क्वाड्रुपुल मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन क्वाड्रुपुल मूवमेंट भी एक चीज होती है। क्वाड्रुपुल मूवमेंट क्या बताता है कि जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल है या नहीं, क्या वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अगर तो क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 आ जाए, इट मींस देयर इज अ स्फेरिकल सिमेट्री इन द सिस्टम। स्फेरिकल सिमेट्री इन द सिस्टम, जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का क्लाउड है इनसाइड, वो एकदम स्फेरिकली सिमेट्रिक है। लेकिन अगर वो 0 ना आए, इसका मतलब वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। तो जो हमारे केस में इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट की वैल्यू आती है 2h के केस में, वो आती है बहुत ही छोटी 0.0028 बी। इतनी छोटी वैल्यू आती है, बट स्टिल वैल्यू तो आ रही है ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। तो वी कैन से दैट ड्यूट्रॉन इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। ड्यूट्रॉन इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। और ये क्यों स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है? देखो, अगर तो सिर्फ L इक्वल्स टू 0 स्टेट होती तो Q 100% 0 होता। तो 96% स्टेट जो है हमारी L इक्वल्स टू 0, उसकी वजह से तो क्वाड्रुपल मूवमेंट 0 आ रहा है। लेकिन जो बाकी तुम्हारी 4% L इक्वल्स टू 2 स्टेट है, उसकी वजह से ही इतना क्वाड्रुपल मूवमेंट आता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो कंप्लीटली स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारा Q जो है वो है 0.002 into some value b barn. Okay, so how we calculate it is barn. B is a unit of quadrupole movement, which is barn. So this says not spherically symmetric, not spherically symmetric। और ये क्यों आ रहा है? ये L इक्वल्स टू 2 स्टेट की वजह से आ रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4% होती है। ठीक है। यहां तक सारे कंसेप्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, मैंने क्लियर किए हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने जाऊंगा तो बिना मतलब के 10 लेक्चर्स का ये बन जाएगा। आई कैन टीच यू द कंसेप्ट, लेकिन इस केस में सिर्फ एक डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता है और हमें बस फैक्ट्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, जो न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर एज लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर मैं एक एक कंसेप्ट को कंसेप्चुअली देखूंगा। हम कंसेप्ट को समझेंगे, हम फॉर्मूला डेरिवेशन अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए। ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में तो सबको फैक्ट्स क्लियर है। ठीक है। विदाउट एनी टेकिंग एनी वरी अबाउट concepts, are the facts clear to everyone? अगर आएंगे पेपर में तो रिपीट कर पाओगे, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। बताओ भाई, क्लियर है? सबने लिख लिए फैक्ट्स? Yes. एवरीवन? I don't want to waste your time in building the concepts for this. It's a very useless time. Wait, okay? So this is my suggestion for you. You just remember these facts, have some idea about the things, that's it.
ओके, सो शुड वी मूव ऑन? इतना क्लियर है? जल्दी बताओ भाई, सो तो नहीं रहे? इतना क्लियर है? आगे लास्ट टॉपिक पे चले और इस टॉपिक को वाइंड अप करें। ओके, हाँ ना बोलो भाई। यस। ओके गुड। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो कैसे लगते हैं, हाउ द न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट बिटवीन द टू पार्टिकल्स। उसके लिए युकावा इज अ साइंटिस्ट हु गेव अ थ्योरी इन 1935, डजंट मैटर व्हेन ही गेव द थ्योरी। सेज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ क्वांटम। तो कुछ पार्टिकल है क्वांटम, वो एक्सचेंज हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं एक्सचेंज फोर्सेस। एक्सचेंज फोर्सेस तो कैसे हो रहा है, मान लो यहां पर एक बॉडी है ए, जिसको हम न्यूट्रॉन मान लेते हैं, और दूसरी बॉडी है प्रोटॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में कैसे फोर्स लगा रहे हैं? तो न्यूट्रॉन एक पार्टिकल को सेंड करता है या एक क्वांटम को सेंड करता है, वो पहुंचता है पी तक, और वो पी पर जाकर फोर्स लगाता है। दिस इज द बेसिक assumption ऑफ दिस थ्योरी, दैट इट इज एन एक्सचेंज फोर्स। कुछ एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। सिमिलरली हम बाकी फोर्सेस के बीच में भी ऐसा ही बोलते हैं। तो व्हाट इज द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? कैन एनीवन टेल मी? ईएमटी फोर्स में कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है? वो होता है फोटोन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटोन। ग्रेविटॉन। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर भी एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये एक पार्टिकल फिजिसिस्ट की थ्योरी है। एक्चुअल में पार्टिकल निकलता है, वहां जाता है, ये सब किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये एक थ्योरी है। दिस इज अ थ्योरी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भी ये पार्टिकल है फोटोन। अब एक बात याद रखना, मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल, मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। ठीक है, मास ऑफ, या तुम उल्टा भी बोल सकते हो, द रेंज ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल। अब फोटोन का मास कितना होता है? 0। और ईएमटी फोर्स की रेंज कितनी है? इन्फिनिट। रेंज कितनी है? इनफाइनाइट। सिमिलरली ग्रेविटोन का मास कितना होता है? 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज कितनी है? इन्फिनिट। अब न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज कितनी है? बहुत छोटी सी। तो इसका मतलब इसके बीच में जो मास ऑफ द एक्सचेंज पार्टिकल होगा वो बहुत बड़ा होगा, वो काफी हैवी पार्टिकल होगा, वो ऐसे सिंपल मासलेस पार्टिकल नहीं होगा। तो कौन सा पार्टिकल है जो कि एक्चुअल में ये फोर्सेस लगा रहा है? उसको बोलते हैं पायोन या फिर पाई मिजोन। ठीक है, पाई मिजोन एक पार्टिकल है जिसको हम पार्टिकल फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये हेड्रोन है या क्या है? अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक हेड्रोन्स होते हैं, ठीक है, लेप्टॉन्स होते हैं। हेड्रोन्स की क्वांटिटी में एक एक पार्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं पाईऑन, पाई मिजोन्स। सो मिजोन्स इज अ फैमिली ऑफ पार्टिकल्स, उसमें से एक मिजोन है पाई मिजोन। तो पाई मिजोन की जो है वो दो पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज होता है व्हाइल न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सर्टेड। तो न्यूट्रॉन जो है पाई मिजोन को फेंकेगा, जो कि प्रोटॉन के ऊपर जाके टकराएगा और फोर्स को लगाएगा। So this you should remember, what is the exchange particle between the nuclear forces, that is pion या फिर पाई मिजोन। अब ये पाई मिजोन का जो मास है ऑलमोस्ट 300 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काफी हैवी पार्टिकल है। और तीन तरह के पायोन्स एग्जिस्ट करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज पायोन है, एक न्यूट्रल पायोन है, और एक पॉजिटिवली चार्ज पायोन है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन में मतलब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो नेगेटिवली चार्ज पाइऑन होता है, इज द एक्सचेंज पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज पाइऑन। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज पाइऑन होगा। और जब प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स लगा रहे हैं या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स लगा रहे हैं तो
अनचार्ज्ड पायोन होगा। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन सा है और क्या रिएक्शन है, तुम रिएक्शन भी देख सकते हो। तो न्यूट्रॉन विल गिव वन प्रोटॉन एंड वन पाई नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, या फिर वन प्रोटॉन प्लस पाई नेगेटिव विल गिव वन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज अ रिएक्शन, यू ओनली हैव टू रिमेंबर कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो पाई नेगेटिव, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर लगा रहा है तो पाई पॉजिटिव, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में लगा रहे हैं या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में लगा रहे हैं तो पाई जीरो। ठीक है, तीन तरह के पियोन्स होते हैं, पायोन्स होते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओवरऑल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओवरऑल एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जब पायोन एक जगह से निकला और दूसरी जगह पे जाके उसने फोर्स लगाई, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स लग रही थी इन बिटवीन, तब एनर्जी कंजर्व नहीं होती, उतने टाइम के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फेल हो जाता है। जब पूरी की पूरी फोर्स लग जाती है तब अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को देखें तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेकिन उस स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जब फोर्स लग रही है या जब पाई मिजोन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस टाइम के बीच में एनर्जी कंजर्व नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सीएसआर नेट के एग्जाम में आया है, जो कि इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, जो कि इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। हम देखते हैं कि डेल्टा टी टाइम के लिए मान लो कि तुम्हारी फोर्स या तुम्हारी इंटरेक्शन रह रही थी, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स को लगने में कितना टाइम लग रहा है, मान लो डेल्टा टी, मान लो डेल्टा टी, और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली एच कट, दिस इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ऑलमोस्ट एच कट होते हैं। अब हमें ये डेल्टा टी फाइंड करना है और हमें डेल्टा ई पता है, डेल्टा ई क्या होगा, इट्स अ रेस्ट मास ऑफ द पायोन, क्योंकि पायोन ही जाकर टकराएगा ना उसके साथ, तो ऑलमोस्ट डेल्टा ई जो है वो तो पायोन का मास एनर्जी होगा। ठीक है, तो वहां से अगर तुम डेल्टा टी निकालो तो वो कुछ 10⁻24 सेकेंड आता है, कि इतने टाइम लगता है फोर्स लगने के लिए, यानी कि इतने टाइम के लिए पायोन जो था रास्ते में था। ठीक है, रास्ते में था और स्पीड ऑफ पायोन लगभग सी होगी, ऑलमोस्ट सी होती है। ठीक है, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास में होती है। तो अगर तुम रेंज निकालो कि वो कितना चला होगा, तो वो आएगी इतनी 10⁻13 सेंटीमीटर। तो तुम इस तरह से रेंज ऑफ अ फोर्स निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे सीएसआर नेट के ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस चीज को याद रखना कि जो तुम्हारी रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच कट बाय डेल्टा ई। अब तुम्हें जो भी पार्टिकल दिया हुआ है तुम उसके लिए डेल्टा ई निकाल सकते हो, उसके लिए डेल्टा ई निकाल सकते हो, और फिर रेंज कैसे निकलेगी, सी इंटू डेल्टा टी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ है और गेट में भी आ सकता है, सीएसआर नेट में तो ऑलरेडी आ चुका है। फाइन, सबको क्लियर है यहां तक? आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक विच वी हैव। इज इट क्लियर एवरीवन? कुछ सेंस बनी थोड़ी बहुत? Yes, bhaiya. ओके, वन लास्ट कंसेप्ट विच यू शुड नो, ओके, अदर देन दैट नथिंग एल्स इज इंपॉर्टेंट। जो युकावा पोटेंशियल है वो क्या होता है, उसका फॉर्म क्या है, उसके क्या, कैसे लिखते हैं उसको? तो युकावा पोटेंशियल है क्या? युकावा पोटेंशियल ये है, वो बोलता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मान लो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो मैंने जैसे बोला ना कि न्यूट्रॉन फोर्स लगा रहा है, मतलब ये वाला प्रोटॉन कुछ पोटेंशियल फील कर रहा होगा, इट विल बी फीलिंग सम पोटेंशियल, इट विल बी फीलिंग सम पोटेंशियल, क्योंकि जब भी फोर्स होती है पोटेंशियल तो आ ही जाता है। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एफ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, जब भी फोर्स होगी ये पोटेंशियल तो आएगा ही आएगा। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर किस तरह का पोटेंशियल लगता है, तो वो लगता है युकावा पोटेंशियल, जिसकी फॉर्म होती है माइनस, माइनस याद रखना पोटेंशियल नेगेटिव है क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है, k बाय आर इंटू माइनस आर बाई ए। तो मैं तुम सबको सजेस्ट करूंगा ट्राई टू प्लॉट दिस,
ट्राई टू प्लॉट दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पोटेंशियल काफी जगह पर आता है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज होगा ये, ठीक है। जब तुम स्कैटरिंग थ्योरी या WKB अप्रोक्सीमेशन, कहीं पर भी तुम्हें ये पोटेंशियल देकर क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस पोटेंशियल को, युकावा पोटेंशियल क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। और वो होता क्या है, वो होता है कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन के ऊपर या प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है उसकी क्या फॉर्म है, दैट इज 1/r इंटू e⁻⁻r/a। ओके, एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? सबको क्लियर है बात? लेट्स कंक्लूड द सेशन। तो न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर या ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के अंदर तुम एक लिमिट तक ही पढ़ सकते हो, और वो जो लिमिट है वो मैंने कवर कर दी है। क्वेश्चन जो है इस लिमिट को क्रॉस करके भी आए हुए हैं, CSR नेट में 1 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस लिमिट को भी क्रॉस करते हैं। उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन सी बुक का? देर इज वन बुक नेम, देर इज एंटायर बुक कॉल्ड क्रेन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक, ठीक है। अगर इसका चैप्टर पढ़ने जाओगे तो कम से कम 50 पेज का चैप्टर है और बहुत ही डिफिकल्ट है, फिर भी शायद वो क्वेश्चन ना हो, ठीक है। तो हमें इतना भी आगे नहीं जाना। जो भी गेट में क्वेश्चन आएगा, कम से कम गेट का तो तुम 100% इतनी सी इंफॉर्मेशन में कर दोगे क्वेश्चन। लेकिन CSR नेट में क्या है कि इससे आगे भी बात जा सकती, लेकिन डरना वो फिर अगर इससे भी आगे जा रही है तो वी कैन लीव द क्वेश्चन। बट इतनी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ताकि इस टॉपिक से अगर इजी क्वेश्चन आए तो वो मिस ना हो। हम ज्यादा से ज्यादा इजी या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। एडवांस में तो कम से कम जैसे 30 क्वेश्चन है पार्ट सी में, तो 5 to 10 क्वेश्चन जो होंगे काफी हार्ड होंगे, जिनको तुम कुछ भी पढ़ के चले जाओ नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें ऑप्शन दी जाती है कि 20 क्वेश्चन कर लो 30 में से, दैट्स इट। तुम्हें वो 5 से 10 क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल जा सकते हो। अगर तुम उसको पढ़ने जाओगे तो पढ़ते ही रहोगे एक ही टॉपिक को। तो मुझे लगता है कि अगर इजी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से तो अब तुम कर पाओगे, इतनी सी इंफॉर्मेशन में काफी है वो, ठीक है। और हमें न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर या ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के ऊपर और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम बाकी भी न्यूक्लियर फिजिक्स के लेक्चर्स देखो। उसके अंदर हम एक्चुअल में जो देखेंगे कि जो क्वेश्चंस ज्यादा अमाउंट में आए हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी में काफी क्वेश्चंस आए हैं, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में काफी क्वेश्चन आए हैं, न्यूक्लियर मॉडल्स में काफी क्वेश्चन आए हैं, पार्टिकल फिजिक्स से काफी क्वेश्चन आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनको किया जा सकता है, सिंपल है। एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर वो क्वेश्चन पक्का होगा ही होगा। तो अब हम वो टॉपिक्स को कवर करेंगे। कल क्लास नहीं होगी, परसों दोबारा होगी, तो हर 2 क्लासेस के बाद एक दिन का ब्रेक है और फिर क्लास है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। एंड परसों से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का, ठीक है। और हम पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स लगभग 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर देंगे। और फिर उसके बाद कम से कम तुम ये गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चंस तो न्यूक्लियर में होंगे ही। अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो पक्का होगा, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 5 से 10 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। और ये बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स ऑलमोस्ट कोई कवर नहीं करता, ठीक है। ओके, सो सी यू ऑन 19th।